देख पिले नेक्स्ट हूँ तुम एटॉमिक मास ओके एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास शुण पिले means what is atomic mass actually atomic mass means what atomic mass means it is a number only comparison number it is not actually mass of the atom but atom or actually mass এটা নয় atomic mass মানে maximum ପିଲାଙ୍କର doubt ଥାଏ ଯୋଉଟା atom or actually mass ନା no ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମର ମାସ୍ କେତେ 1 ଆଟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲେ କହିଲ ଯଦି 1 ଆଟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ତାର ମାସ୍ କେତେ ହେବ 1 ଆଟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 1 ଆଟମ୍ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ତା ମାସ୍ କେତେ ହେବ ଯଦି ପଚରାଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେବେ ଯେ 16 ଗ୍ରାମ 16 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେବେ 16 ଗ୍ରାମ बोला एटार मास एक्चुअली 16 ग्राम भी हेनी आ मास 16 ग्राम हम कि पेन रसटा 16 ग्राम हम गोटे पटाटोर मास भी 16 ग्राम हेनी तेना एटम नॉट लुक लाइक दैट एटम इज वेरी स्मॉल सो द मास ऑफ एटम नॉट इक्वल टू 16 ग्राम ये 16 ग्राम हम नहीं actually mass kete hobo if we'll take I have already told you if we'll take Avogadro's number of atoms means 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms means Avogadro's number of atoms n0 atoms means 6.023 into 10 to the power 23 number एतिकी तमे जदि एतिकी नंबर यूज करिवो ताले मास होबो 16 ग्राम 16 ग्राम हम ताले पे कहलो 1 एटम मास केते हबो इफ विल टेक 1 एटम ऑक्सीजन मास केते हबो 16 बाय Avogadro's नंबर 20 ग्राम ये 16 ग्राम हम एति ग्राम हम तो 1 एटम ऑक्सीजन मींस 16 बाय Avogadro's नंबर वेरी स्मॉल मास इतनी ग्राम हम बुझल तो प्ले तामाने आमे जो आटम और मास मु पचारि 16 ग्राम 16 बाय Avogadro's नंबर 16 बाय Avogadro's नंबर ग्राम्स मु जो कहि कार्बन एटम मास केते ऑक्सीजन एटम 1 एटम ऑक्सीजन तो 1 एटम कार्बन केते हबो ना 12 बाय Avogadro's नंबर ग्राम हाइड्रोजन केते हबो ना 1.008 बाय Avogadro's नंबर ग्राम which one is very difficult to remember आमे को माइंड रिमेंबर करिया भी डिफिकल्ट हम so that you have to take only number which makes easy to remember the mass of the atom but atom or mass actually केते हबो you can easily remember by using this concept by using this atomic mass. Then how can get that number? I mean, the number को पाया किमती? Now we have to only relate. तो देखो पहले सबुठु लाइटर एटम केस हबो लाइटर एटम होची हाइड्रोजन ता मास होची 1.008 बाय Avogadro's नंबर किंतु आकु तमे 1 बोले अज्यूम करबा ताले ये एक्जेक्टली 16 हबो नै 16 हबो नै 16 हबो नै का एटा 1.008 अछि जो 1.008 पे 1 कहबा एटा 16 हबो नै 16 हबो नै बुझने को तेणु करी आमे हाइड्रोजन को कंपैरिजन करे यूज करबा नाही बुझलो तो ता माने सबुठ लाइटर हितबो होल नंबर हितबो मासटा एक्जेक्टली होल नंबर हितबो यू टेक कार्बन एटम 1 एटम कार्बन केते हबो ना 16 बाय Avogadro's नंबर ग्राम 16 बाय Avogadro's नंबर ग्राम इतनी मास हम ओके if we'll take
1/12 of 1/12 the mass of a carbon atom, one atom carbon. 1/12 of the mass of one atom carbon. মানে এই মাসর 1/12 পার্ট ইউজ করা 1/12 পার্ট ইউজ করা তাহলে কত হবো না 1/Abbott number means 1/6.023 into 10 to the power 23 gram. 23 গ্রাম ওকে আমি যদি এতিকি মাসକୁ এই মাসକୁ তুমি কহ যে দিস ইকুয়াল টু 1 mu means atomic mass unit কেতে কইব 1 AMU means atomic mass unit তাহলে পিলে গেল তাহলে এটা কেতে হবে 16 AMU means 1 AMU মানে গোটে AMU মানে means what atomic mass unit 1 AMU means that equal to 1/6.023 into 10 to the power 23 number of grams তাহলে ये কেতে হবে না 12 AMU ये কেতে হবে 1.008 AMU similarly sulfur atom কেতে হবে 32/Abbott number grams this equal to 32 AMU 32 what AMU means 1 AMU equal to 1 AMU equal to 1/Abbott number of grams okay 1 by what Abbott number gram তো মাইন্ড রাখো 1 AMU কইলাম কইবা যে 1 AMU আমি কইবা যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মলিকুলার মাস this equal to 44 AMU એટલે 44 AMU means কেতে গ্রাম হবো 44 AMU মানে কেতে গ্রাম হবো মু কইছি 1 AMU কেতে না 1/6.023 into 10 to the power 23 গ্রাম তাহলে কেতে হবো this equal to 44/6.023 10 to the 23 grams তার মানে এতিক হবো তার মানে হচ্ছে যে 1 AMU আমি যদি কইবা 1 AMU equal to 1/6.023 10 to the power 23 গ্রাম ওকে তাহলে আমি কাহাকু কম্পারিজন কলে না ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার দ মাস অফ one atom of a C12 carbon atom means atomic mass মানে comparison number atomic mass means the mass of one atom of an element গোটে atom গোটে element র গোটে atom यूज করিব গোটে atom element র গোটে atom यूज করিব divide by 1/12 of the mass of C12 carbon atom. C12 what carbon atom? Just comparison mass. It is a comparison mass. মানে relative mass. Okay? আমি কইছি exactly same concept molecular mass. Sulfur dioxide molecular mass 64 AMU. তার মানে হচ্ছে AMU. AMU মানে কোন হচ্ছে atomic mass unit this means how much gram कितने ग्राम होबो ना 64/6.023 10 to the power 23 gram 6.023 10 to the power 23 grams এতিকি মাস হবো এতিকি গ্রাম হবো ক্লিয়ার কি নট ক্লিয়ার মানে এটাকে তুমি কম্পারিজন একারে ইউজ করিব যদি এতিকি মাস আমি 1 বলে অ্যাজুম করিবা তাহলে এই মাসটা কেতে হবে এই মাসটা এক্স্যাক্টলি কেতে হবে কম্পারিজন করলে কেতে হবে তো অ্যাটমিক মাস মানে ওটা কম্পারিজন মাস কাহা কম্পারিজন করা উচিত না 1/12 অফ দ মাস অফ কার্বন আটম তাকে আমি কম্পারিজন করিকি ইউজ করছে তাহলে ক্লিয়ার না নট ক্লিয়ার বুঝলো তো ওটা কার্বন আটম ইউজ করিব তার মাসটা যেতিকি হব তার 1/12 পার্ট ইউজ করব 1/12 পার্ট ইউজ করব যদি 1/12 পার্টକୁ আমি 1 ବୋଲି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଟମର ମାସଟା ଯେତିକି ହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତାର ଆଟମିକ ମାସ ଓକେ ଆଟମିକ ମାସ ସେତିକି ହବ ପିଲା ଦେଖ
अच्छा बर्तमान देखो थोड़ा एग्जाम रे पचार थिला जदि 1/12 जगह आम 1/6 यूज करवा मनकर गोटे कार्बन एटम मास 1 एटम कार्बन अच्छी ता मास केते ना 12 बाई आवर्स नंबर एटा 1 एटम कौन कार्बन अच्छी अच्छा बर्तमान बिल्कुल आम जब 1/6 यूज करवा अच्छा 1/12 यूज कले केते हबो 1/12 यूज कले दिस इक्वल टू 1 बाई आवर्स नंबर आपको आम 1 बोले अज्यूम करवा तो 1/6 यूज करवा 1/6 यूज करवा 1/6 1 एटम ऑफ कार्बन এটা কেতে হবো না 2 বাই আওয়ার্স নাম্বার 2 বাই হোয়াট আওয়ার্স নাম্বার যদি এই মাসକୁ ଆମେ 1 ବୋଲି अज्यूम करबो 1 ବୋଲି अज्यूम करे 1 एम अज्यूम करबा তাহলে বর্তমান মতে পেলে কল যদি অক্সিজেন মাস কেতে 16 বাই আওয়ার্স নাম্বার গ্রাম অক্সিজেন এটমৰ মাস তাহলে ইয়ে কেতে হবো এই কেতে হই যাব যদি 2 বাই আওয়ার্স নাম্বার 1 কইবা তাহলে এটা কেতে হই যাব 8 एम सल्फर केते हबो ना 32 बाय आवर्स नंबर ये केते हिजबो 16 एमयू ता माने एटॉमिक मास को हबो जस्ट हाफ हिजबो जस्ट हाफ हिजबो स्टार्टिंग मास को हबो हाफ हिजबो कार्बन केते हबो 6 हिजबो कार्बन केते हिजबो 6 हिजबो ता माने 1/12 जगह रे आमे जदी 1/6 यूज करबा তাহলে ওটা আটম্বর মাসটা যেতিকি থিব তার জাস্ট কম হাফ হয়ে যাব কিন্তু এক্সাক্ট মাস এটা হচ্ছে তার এক্সাক্ট মাস কি চেঞ্জ হচ্ছে কি 1/12 यूज करो कि 1/6 यूज करो तो एग्जैक्ट मास ऑफ एटम रिमेन अनचेंज्ड गोटे एटमर एग्जैक्ट मास केबे चेंज हबो नाही किंतु एटॉमिक मासटा चेंज हे परिबो काहेकि दैट इज ए नंबर दैट इज व्हाट नंबर मनकर कहि गोटे तुम एग्जांपल दोची जो क्लास रे 100 जन स्टूडेंट अछंती 100 जन पिला अछंती समस्तଙ୍କର वेट होची डिफरेंट समस्तर वेट होची डिफरेंट कारण मनकर 10 केजी आरंभ होची 10 केजी 20 केजी 40 केजी 30 केजी 50 केजी 60 केजी अप टू 100 केजी 10 केजी स्टार्ट होची 10 केजी सब लाइटर मु जदि 10 केजी की 1 बिले अज्यूम करबी 1 कहबी माने ओनली 1 कहबी तल 20 केजी केते अज्यूम करबो 2 को आजिबो 30 केजी केते को आजिबो 3 को आजिबो 40 केजी केते को आजिबो 4 को आजिबो बुझलो कि 10 केजी को 1 कहजे 10 केजी की 1 कहजे मु जदि कहबी 5 नंबर होची 5 माने 50 केजी सिंपल 5 माने को 50 केजी अच्छा मु जदि 10 केजी की 2 कहबी जदि 10 केजी 2 कहबी तले से अनुसार 20 केजी केते को आजिबो 4 को आजिबो 50 केजी केते को आजिबो 10 को आजिबो तमन तुम नंबरटा केते बिली अज्यूम करछो यदि 10 केजी के मु 1 बिली अज्यूम कली तले 20 केजी 2 को आजिबो 30 केजी 3 को आजिबो 40 केजी 4 को आजिबो 50 केजी 5 को आजिबो क्लियर कि नॉट क्लियर जदि मु 10 केजी की 2 बिली कहबी तले 20 केजी केते को आजिबो 4 को आजिबो 30 केजी केते को आजिबो 6 को आजिबो आर फिले क्लियर कि नॉट क्लियर ओके तमे ताको नंबर को केते बिली यूज करछो से अनुसार गोटे मासटा केते हबो ताकू को जे कंपैरिजन मास और एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास इज ए नंबर ओनली कंपैरिजन नंबर और रिलेटिव नंबर प्लस एग्जाम रे पचार थला यदि 1/12 जगह रे आमे यदि 1/6 यूज करिबा तले कोन हबो तो एटॉमिक मास बिकम हाफ बट तो एग्जैक्ट मास ऑफ एटम कौन रिमेन अनचेंज्ड रिमेन व्हाट अनचेंज्ड ए पॉइंट नोट करो इफ 1/6 is used 1/6 is used instead of 1/12 the atomic mass become half the atomic mass become half but the exact mass of atom remain unchanged
तो एग्जैक्ट मास ऑफ एटम रिमेन व्हाट अनचेंज्ड किछि चेंज हबो नाही नो चेंज किछि चेंज हबो नाही द एग्जैक्ट मास ऑफ एटम रिमेन अनचेंज्ड किछि चेंज हबो नाही क्लियर कि नॉट क्लियर ओके एथरो बुझलो ना बुझलो निको नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूलर मास होची सेम एग्जांपल्स नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक मास देखो पहले तो जानिछो वन एलिमेंट पजेस डिफरेंट आइसोटोपिक मास मने करो कार्बन 12 अछि 13 अछि 14 अछि कि क्लोरीन मन को बेस्ट एग्जांपल क्लोरीन 35 मास अछि 37 मास अछि एटा तर आइसोटोपिक मास फिले कहलो एठी क्लोरीन रो एग्जैक्ट एटॉमिक मास ता तले केते हबो हमें 35 एकरे यूज करबा ना 37 एकरे यूज करबा कोड यूज करबा 35 ना 37 you have to take average atomic mass means if we take sample of chlorine atom in which ratio they are present मन करो तो sample contain 3:1 ratio 3:1 ratio if we take 4 chlorine atom तुम 4टा क्लोरीन एटम यूज करिवो यदि 35 अछि 3टा 37 हबो गोटे यदि 35 रो 3टा अछि एटम तले 37 रो गोटे तले बर्तमान मते पिले कलो एई केस रे एवरेज केतो हबो तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 35 into 3 37 into 1 by 4 this equal to 35.5 the average atomic mass of chlorine equal to 35.5 means the 35 mass present sample in the molar ratio of what 3:1 then what will be the average atomic mass equal to this the average atomic mass equal to this much okay next play देखो मनकर गोटे एलिमेंट होची x आइसोटोप मास होची a1 अछि a2 अछि मोलार रेशियो केते अछि मोलार रेशियो अछि n1:n2 ताले पिले कलो एई केस रे एवरेज एटॉमिक मास केते हबो एवरेज एटॉमिक मास केते हबो a1 into n1 plus a2 into n2 by n1 plus n2 this equal to average atomic mass माने you just take average atomic mass average what atomic mass the average atomic mass element equal what a1 n1 plus a2 n2 by केतरे n1 plus n2 अधिक हो मुझे कहली ये 3 अछि 1 अछि एवरेज केते हबो atomic mass 3 into this plus 1 into this by total এটা কোন ধর average atomic mass ओके तो काम करो एटा ई कर दो ओपन कर दो n1 by केते हबो n1 plus n2 a1 plus n2 by केते हबो n1 plus n2 a2 तले बर्तमान आकु कोन दी कोन मोल फ्रैक्शन आकु को जे मोल फ्रैक्शन सो दिस इक्वल टू x1 into a1 plus x2 into a2 then mole fraction of this plus mole fraction of this into this और आकु भी x1 plus x2 के x1 plus this के तो 1 हो this plus this equal to 1 हो ता माने this also equal to x1 into a1 plus 1 minus x1 into a2 ताकु भले चलिबो एटा x टा कोन ना this equal to mole fraction x टा करी x equal to ताकु mole fraction कहीं गलो ना एटा जे x1 आकु धर x1 this equal to x1 this equal to x2 तो x1 plus x2 के दबो this plus this के दबो 1 ही जीवो this plus this is 1 तो x2 के दबो x2 हबो x2 के दबो x2 जो 1 minus x1 1 minus x1 एति का आंसर आंसर ता एति का हबो अरे क्लियर कि नॉट क्लियर
दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन दिस प्लस मोल फ्रैक्शन तो पचार जे दीटा एलिमेंट अच्छी गोटे 35 अच्छी 37 अच्छी गोटेकर मोल फ्रैक्शन देछि आरटा देनी तो गोटे हूँ 0.2 आड़े के 0.8 गोटे हूँ 0.3 आड़े के 0.7 मुझे पचारि एवरेज एटॉमिक मास के हम ताने 0.2 इंटू एटॉमिक मास प्लस 0.8 इंटू एटॉमिक मास 0.8 इंटू एटॉमिक मास ये हूँ पाठ क्लियर कि नॉट क्लियर बुझिल ना बुझिल ओके पे मनकर ये अच्छी एक्स परसेंटेज मोलार परसेंटेज एक्स मोलार परसेंटेज एक्स ताले ये केते हबो 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स ताले बर्तमान मत पे कहलो एटा एवरेज एटॉमिक मास केते हबो तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू x into a1 plus 100 minus x into a2 by 100 by 100. This equal to what? Average atomic mass. Average what? Atomic mass. Okay? माने किए केते परसेंटेज अछि किए केते परसेंटेज अछि दैथबो मनकर कपर रो 63 अछि 65 अछि 63 अछि 20% 65 अछि 80% पचारिबो जे एवरेज एटॉमिक मास केते हबो सिंपली फॉर्मूला आराम से बारिबो पले बुझलो न पले एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट मनकर फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस मनकर दीटा गैस मिक्स हे गछि गोटे x1 गैस गोटे x2 गैस दीटा उनकर काम करे ए गैस बी गैस ए बी मिक्सचर गैस हला पले आर मॉलिक्यूलर मास होची m1 आर होची m2 आर मोल होची n1 आर मोल होची n2 ताले बर्तमान मत पे कहलो एवरेज एटॉमिक मास केते हबो एवरेज एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर मास केते हबो तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर इक्वल टू n1 into m1 sorry n1 plus m1 plus n2 plus m2 by n1 plus n2 this equal to molecular mass of mixture माने this equal to n1 by n1 plus n2 m1 plus n2 by n1 plus n2 m2 तो ये भी मोल फ्रैक्शन then x1 into m1 plus x2 into m2 ये भी मोल फ्रैक्शन x1 m1 plus x2 के m2 এটা মোল দিস মোল এটা মোল আর মোল হচ্ছে n1 তার মোল হচ্ছে n2 ওকে पहले मन कर ये हूँ x परसेंटेज मोर ताले ये हूँ 100 माइनस x गोटे x लाड के तब जो गोटे हूँ x आरट के तब 100 माइनस x 100 माइनस x हला ताले बर्तमान मत लिख कहलो ताले एवरेज मॉलिक्यूलर मास के तब मॉलिक्यूलर मिक्सचर के तब ना एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट m1 into x plus m2 into 100 minus x by 100 is equal to molecular mass of mixture molecular mass of mixture of molecular mass best example कुछ air the air contain nitrogen and oxygen gas nitrogen होची oxygen gas होची so the nitrogen होची 20% oxygen होची 80% ये होची 20% ये होची 80% ताले बर्तमान मत पे कहलो ताले एआर रो मॉलिक्यूलर मास केते हबो मॉलिक्यूलर मास एआर केते हबो ना 20 into 28 प्लस केते हबो 32 into 80 by 100 माने एवरेज माने आर मॉलिक्यूलर मास into 20 आर मॉलिक्यूलर मास into 80 by 100 so this equal to molecular mass of air so the गोटे होची x आटे के तब 100 minus x 100 minus x कि उल्टा पचारिबो जे एआर रो मॉलिक्यूल्स देथिबो एआर रे देथिबो आकु देथिबो तले ये परसेंटेज के तब ये परसेंट के तब आर परसेंटेज के तब आर परसेंटेज के तब माने ये सिंपल तो ये होची x एटा के तब 100 minus x so the एटा होची x तले के तब 100 minus x तो you can get the percentage composition of mixture of gases माने कहार परसेंटेज के तब तो ये होची गोटे x परसेंटेज आले के तब 100 minus x percentage okay so by this way you can get the molecular mass of mixture of gases कि ओडो अछि ओजोन एड ऑक्सीजन ओजोन अछि ऑक्सीजन अछि ओजोन अछि ऑक्सीजन अछि
ओजन O3 ओजन O3 O2 तो देखो ये कितने परसेंट अच्छी ये कितने परसेंट अच्छी जब ये 20 ये कितने 80 कि ये 80 ये 20 बुझे को तमने जब गोटे कर परसेंटेज तुम पाइगल ताले एवरेज मिलना मिलबनी बुझने को एवरेज कितने पाइबो ना 20 into the molecular mass plus 80 into the molecular mass by 100 you can get the average molecular mass और molecular mass होती मिक्सचर बोले क्लियर कि नॉट क्लियर बुझिलो ना बुझिलो निको ओके बोले एटा देखो नेक्स्ट कांसेप्ट देखो बोले नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल केन कर देखो तार होचे डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास हमें एटॉमिक मास को डिटरमिनेशन केमती करबा डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एटॉमिक मास को हमें डिटरमाइन केमती करबा तार तीनटा मेथड अच्छी मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 हमें तीनटा मेथड ही यूज कर बेसी तीनटा मेथड बोले फर्स्ट मेथड तुम ऑलरेडी जानिच एटॉमिक मास कहार बाहर करिवो मेटल रो एटॉमिक मास बोले तुम जानिच ऑलरेडी फर्स्ट होची तुम जानिच फर्स्ट मेथड होची मेथड 1 जे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंस ताले बर्तमान मत पे लिखलो ताले एटॉमिक मास केते हबो ना इक्विवेलेंट मास जतिक अछि इनटू वैलेंस तो माने एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस that gives the atomic mass of the metal okay बोले सेकंड मेथड होची डुलोंग-पेटिट्स मेथड बोले डुलोंग-पेटिट्स मेथड कोन ना गोटे सॉलिड एलिमेंट अछि गोटे सॉलिड एलिमेंट पर एटा तार गोटे लॉ अछि गोटे सॉलिड एलिमेंट रो स्पेसिफिक हीट बोले स्पेसिफिक हीट तुम स्पेसिफिक हीट कथा जानि तो स्पेसिफिक हीट माने कोन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर केते अमाउंट हीट रिक्वायर करछि टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस माने 1 डिग्री सेल्सियस तुम राइज करिवो ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जदि 1 ग्राम सब्सटेंस रो 1 डिग्री टेम्परेचर तुम राइज करिवो जति की अमाउंट हीट रिक्वायर करिवो पे ताकू कहा जाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल 1 ग्राम सब्सटेंस रो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करा पई तो जति की हीट रिक्वायर करिवो ताकू कहा जिवो द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल ना बुझलनी को त माने गोटे सॉलिड एलिमेंट रो स्पेसिफिक हीट देथिबो जदि द एटॉमिक मास सहित आमे से स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करतबा दैट मस्ट बी कैलोरी पर ग्राम नॉट जूल पर ग्राम जदि जूल अछि कन्वर्ट टू कैलोरी कारण 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल जदि एटा कैलोरी जूल आकर अछि तो कैलोरी की कन्वर्ट करी के प्रॉब्लम ना भूली जबो एटा कैलोरी पर ग्राम आकर द स्पेसिफिक हीट मस्ट बी कैलोरी पर ग्राम यदि एटॉमिक मास द स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करिवो दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 लाको कोंदी डुलोंग-पेटिट्स लॉ गोटे सॉलिड एलिमेंट रो स्पेसिफिक हीट सहित जदि एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करा जिवो एटा केते हबो ना 6.4 अप्रोक्सीमेटली हबो एति की अप्रोक्सीमेटली हबो राइट जदि एटा कैलोरी पर ग्राम कर दै जूल देले डिवाइड करले भूली जिवो यू हैव टू कन्वर्ट टू कैलोरी अथवा तने पले कोन जदि ए स्पेसिफिक हीट देइथिबो तले बतर मते पले कोन तले एटॉमिक मास टा केते हबो ताले अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास टा केते हबो द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 by स्पेसिफिक हीट you can get approximate atomic mass पिले देखो तुम क्वेश्चन रे कोन दबो आंसर के फटाफट सॉल्व करियो पिले देखो क्वेश्चन रे स्पेसिफिक दबो ए सॉलिड एलिमेंट स्पेसिफिक दबो तापर सेटा मास पे गेलो सेकंड इक्विवेलेंट मास दबो एति दबो क्वेश्चन एति दबो पचरिबो जेता एटॉमिक मास केतो एटॉमिक मास केतो हबो
ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏତିକି ଥିବ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଇଥିବ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସଟା ଦେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବ ଆଟୋମିକ୍ ମାସଟା କେତେ ଆଟୋମିକ୍ ମାସଟା କେତେ ହବ ଏଠି ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆଟୋମିକ୍ ମାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସଟା ଜଣା ଅଛି আচ্ছা ইকুইভ্যালেন্ট মাস মানে কোন আটমিক মাস ভ্যালেন্সি তাহলে ইউ ক্যান গেট ভ্যালেন্সি দেখো প্লে ইকুইভ্যালেন্ট মাসটা জনা আছে মানে আটমিক তবে কিন্তু পাই ভ্যালেন্সি দরকার কেবল ভ্যালেন্সি পাইলে পাই যাব মানে ইকুইভ্যালেন্ট মাসটা জনা আছে মানে এটা ভ্যালেন্সি মল্টিপ্লাই হবে কোন পাই আটমিক পাই যাব তো ভ্যালেন্সি কে দেব না ভ্যালেন্সি ইজ ইকুয়াল টু আটমিক মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস এটা দেইছি এটা ভ্যালিড এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট তো ভ্যালেন্সি অফ অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালেন্সি কিন্তু বলে ভ্যালেন্সি যে অ্যাপ্রক্সিমেট হব সে কেবে বি ফ্রাকশন হব নাই ফ্রাকশন কেবে হব নাই তার অলওয়েজ ইকুয়াল টু হোল নম্বর ভ্যালেন্সি অলওয়েজ এ হোল নম্বর তার মানে যদি ভ্যালেন্সি 2.1 আসছি ইউ হ্যাভ টু টেক 2 নট 2.1 2 কি 3.9 ଅଛି দ্যাট ইকুয়াল টু 4 তো 3.9 টা 4 2.1 টা 2 তার মানে ভ্যালেন্সিটা কেবে ফ্রাকশন হব নাই দ্যাট মাস্ট কনভার্ট টু নিয়ারেস্ট হোল নম্বর তুমি এক্সাক্ট ভ্যালেন্স পেয়ে গেল এক্সাক্ট ভ্যালেন্সি পাইল এক্সাক্ট হোয়াট ইকুইভ্যালেন্ট মাস দেইছি এক্সাক্ট ইকুইভ্যালেন্ট মাসটা দেইছি তাহলে পেলে গেল তাহলে এক্সাক্ট আটমিক মাস কেতে হবো না ইকুইভ্যালেন্ট মাস দেইছি ভ্যালেন্সিটা পাই গেল মল্টিপ্লাই করে দেবো ইউ ক্যান গেট আটমিক মাস ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କିନ୍ତୁ କରିବ ତମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେବ ଏତିକି ଦେବ ଆଉ କିଛି ଦେବନି ପଚାରେ ଏଇଟା କେତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଦେବ ଏଇଟା ପଚାରିବ ତ ଫଟାଫଟ କେମିତି କରିବ ନା 6.4ରେ ସ୍ପେସିଫିକଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ପାଇଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ପାଇଗଲ ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ପାଇଲା ପରେ ବୁଝିନି ସେଥିରେ ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାସକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାସଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ପାଇଲ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ସେଇ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିକି ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାସରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ you can get atomic mass okay pila akku besh gote problem numerical ta kuch karo numerical ta kuch bre karo lekho the specific heat of the metal is 0.1 calorie per gram pele mo baramar ko joule per gram achi convert to calorie the specific heat of the metal equal to calorie per 0.1 calorie per gram okay next the equivalent mass of the metal equal to 14 sorry 16 the equivalent mass of the metal equal to 16 calculate तो atomic mass of the metal फटाफट किसी नहीं आंसर ऑलरेडी कही सारी तेणु फास्ट बाय कर अप्रोक्सिमेट आटमिक मास केते हम इक्वल टू 6.4 बाय स्पेसिफिक 0.1 इक्वल टू 64 इक्विवेलेंट मास केते 16 তাহলে ভ্যালেন্সি কেতে হবে না 64 বাই 16 কেতে নিউলি কেতে হবে নিউলি ইকুয়াল টু 4 এক্স্যাক্টলি দেখে দেখো নিউলি কেতে হবে 4 কিন্তু তাকে চেঞ্জ ବି କରିପାରିବ 15.9 କର କି ଯାହା ବି କର ମାନେ କର ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବି ଏଟା 15.8 କରିଦିଅ ଏଟା 15.8 କରିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୋଡା ଇକ୍ୱାଲ ମାସଟାକୁ ତାହେଲେ ନିୟରଲି କେତେ ହେବ ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ 4 ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ତାହେଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଟମିକ୍ କେତେ ହେବ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ମାସ ହେଉଛି 15.4 into 4 ଯାହା ଆନ୍ସର ଏତିକି ହେବ ଏଟା କ'ଣ ତାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ମାସ ଦି ମେଟାଲ क्लियर कि नॉट क्लियर आपको कहा जीव डुलंग पेटिट्स लॉ लिखि दो फटाफट डुलंग पेटिट्स लॉ नेक्स्ट हूँ मेथड 3 फ्रॉम मेटल क्लोराइड भोलाटाइल मेटल क्लोराइड पहले देख गोटे मेटल क्लोराइड अच्छी आर वैलेंस 1 आर वैलेंस नंबर x फॉर्मूला अछि MCl X इट इज दर वैलेंस
ଏଠି ପିଲେ ଦବ କ'ଣ ପଚାରେ କ'ଣଟା ଦବ କ'ଣଟା ପଚାରିବ। ଏଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମୌଳିକ ମାସଟା ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଦବ ଗିଭିନ୍ ଫାଷ୍ଟ। এই মেটালর ইকুইভ্যালেন্ট মাসটা দব, মেটাল ইকুইভ্যালেন্ট মাস দব, এতিকি দব, এতিকি গিভিন। পচারিব এই মেটালর আটমিক মাসটা কেতে হব। অলরেডি লেখা আছে, কিছু অসুবিধা নেই। আটমিক মাস পাইবে ইকুইভ্যালেন্ট মাস দেইছি, দরকারি কোটা ভ্যালেন্স দরকারি, ভ্যালেন্স আর কেতে এক্স। তাহলে আটমিক মাস কেতে হব, আটমিক মাস ইকুয়াল টু ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইন্টু এক্স। সিম্পল, খালি এক্সটা পাই গেলে আনসার পাইযাব। এক্সটা কিনতে পাইব আর মৌলিক মাসটা বাহার করা। মৌলিক মাস কিনতে পারিব না আর আটই মাস এ প্লাস আর আটই মাস 30.5 ইন্টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু মৌলিক মাস, ইকুয়াল টু মৌলিক মাস। আচ্ছা, আটই মাস মানে কোন? ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইন্টু ভ্যালেন্স প্লাস ইকুয়াল টু মৌলিকুলার মাস। তাহলে এক্স কত হবো? মৌলিকুলার মাস বাই ই প্লাস 35.5। E plus kete 35.5. You got balance of the metal. Equivalent mass টা দেইছি, মনে মনে তো পাই আনসার পাইছো। এটা দেইছি, এটা বাহারিব, এটা পাইলা পরে এটা মাল্টিপ্লাই করে দাও। হ্যালো না, বুঝলেনি কো? এটা ଗୋଟେ কোশ্চেন ডাকুছি লেখ, নলে ଗୋଟେ কোশ্চেন ডাকুছি লেখ, ଗୋଟେ কোশ্চেন ডাকুছি লেখ। The vapor density of vapor density জানছো যে molecular mass equal to 2 into vapor density. Molecular mass কেতে 2 into vapor density. The vapor density of a metal chloride is, question লেখো, the vapor density of a metal chloride is, metal chloride is 50. Metal chloride is 50. কেতে 50. The equivalent mass of the metal equal to 12.5. 12.5. Equivalent mass কেতে 12.5. Calculate the atomic mass of the metal. Atomic mass of the metal. Atomic mass of the metal. Atomic mass of the what? Metal. তাহলে কেমনে ভারে কথা কও? Very simple. Vapor density 50 মানে molecular mass কত? 100. 12.5 plus 35.5. आंसर है। बैलेंस है 2. atomic mass कत हो? 12.5 into 2, 25. Better answer. किसी नहीं इतने। खाली molecular mass बाहर आंसर पाएगा। molecular, you only find the molecular mass. Only find the molecular mass. Nothing else. ये बड़ा numerical, ये बड़ा पचार। अगर इतने में तो नहीं पचार numerical। अगर इतने में तो हाँ गोटे थोड़ा मैंने क्वेश्चन उल्टी पचारिबो मगर मेटल क्लोराइड न देखि मेटल ऑक्साइड दबो कि जन तुम सिंपल लिखो मेटल ऑक्साइड माने आ वैलेंस x थरो आ वैलेंस जानि छ 2 तले फार्मूला को हबो M2OX पचर आर एक्टिव मास के एग्जैक्टली आर बोली कस दबो मेटल रो इक्विवेलेंट मास दबो पचरिबो एटॉमिक मास मेटल के दबो ए दिटा दबो एटा पचरिबो तले बाहर हो केमदी ना जदि इक्विवेलेंट मास होची E वैलेंस होची X ये को दर एटॉमिक मास तले मॉलिक्यूलर मास के दबो into 2 plus 16 into X equal to molecular mass तमे एथुरु X टा बाहर कर दबो X टा को बाहर कर दबो एटॉमिक मास into 2 plus 16 into X equal to molecular mass एथुरु X टा बाहर कर दबो एक्स्ट्रा पाइला परे एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास टा इनटू वैलेंस 2x नो वैलेंस इक्वल टू x एक्चुअली वैलेंस इक्वल टू x नॉट 2x से मेथड में प्रॉब्लम करि परिबो न्यूमेरिकल करि परिबो आराम से करि परिबो पूरे क्लियर कि नॉट क्लियर ओके नेक्स्ट ए तीनटा मेथड आउथर को दूची फर्स्ट मेथड कोन कली इक्विवेलेंट मास टा देथिबो वैलेंस देथिबो पचर एटॉमिक मास केता हो इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस सेकंड होचे डुलंग-पेरेट्स मेथड डुलंग-पेरेट्स लॉ हेटे इक्विवेलेंट मास टा दबो स्पेसिफिक हीट दबो पचरिबो एटॉमिक मास केता हो तो कितना करिवो ना 6.4 स्पेसिफिक टा डिवाइड कर दबो जेति के पाइलो इक्विवेलेंट मास टा डिवाइड कर दबो सेतर पुनी इक्विवेलेंट मास टा डिवाइड कर दबो वैलेंस पाइ गेलो न्यूली होल नंबर पाइ जिवो
ताकू तुम इक्विवेलेंट मास रे गुणी दबो आंसर पे तीन मेथड आंसर पे गलो आउट होची वोलाटाइल क्लोराइड मेथड गोटे कंपाउंड रो मौलिक अवस्था देथिबो गोटे एलिमेंट रो एटॉम इक्विवेलेंट मास देथिबो पचार एटॉम मास केता हबो सेटा बेसी बैलेंस दरकार किछ नहीं मॉलिक्यूलर मास देछि माने मॉलिक्यूलर मास बाहर कर दियो इक्विवेलेंट मास जणा अछि माने एटॉम मास केतो E into x एटॉम मास उतना पाई गलो पुट कर दियो हेतु x टा बाहर पड़िबो x टा बाहरला पर E रे गुणी दियो तले कोन पाइलो एटॉम मास पाइले कोन एटॉमिक मास ओके क्लियर कि नॉट क्लियर बुझलो बुझन को नेक्स्ट होची हाउ कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास हाउ कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास प्ले वेरी सिंपल देखो जदि VML गैस NTP रे ता मास होची W ग्राम VML गैस NTP रे होची W ग्राम प्ले पचरची अरे मॉलिक्यूलर मास केता हबो मॉलिक्यूलर मास केता हबो प्ले वेरी सिंपल किछ नै आको मोल करो इक्विटी करो आंसर पाइ जिवो तो फिर VML माने केते मोल्स V/22400 मोल्स W ग्राम माने केते मोल डबल बाय द मॉलिक्यूलर मास इक्विटी का आंसर पाइ गला ml टाको मोल करो ग्राम टाको मोल करो इक्विटी करो आंसर पाइ जिवो फटाफट आंसर पाइ गला तार फिर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू W/V into 22400 पहले कहलो एटा होची ग्राम एटा होची ml एटा ml पहले ग्राम पर ml कोन दिको नॉर्मल डेंसिटी तने ई पहले आउट फार्मूला जे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नॉर्मल डेंसिटी द गैस नॉर्मल डेंसिटी जदि ग्राम पर ml अछि तले इनटू 22400 जदि लीटर अछि तले 22.4 लीटर अछि केते 22.4 अच्छा पहले तो आनिछ वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2 मॉलिक्यूलर मास तले 2 into vapor density equal to normal density into 22400 तान पहले vapor density equal to normal density into 11200 पहले थोड़ा थोड़ा कौन करिवो normal density देथो एतिकी ग्राम पर ml पचारिवो तार मॉलिक्यूलर मास केता हबो ता vapor density केता हबो वेरी सिंपल So the 22400 multiply करता हुआ, you can get what? Molecular mass. The 11200 multiply करता हुआ, you can get what? Vapor density. Clear? Can not clear? फिर पाठो जेदी this atomic mass and molecular mass. फिर आकु बेस करिकी एतिकी तो न्यूमेरिकल किछ नै चारटा कांसेप्ट नात्र आकु बेस करिकी तुम सब जा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करि परिबो क्लियर एको बेले वीडियो टाको तुम 3 से 4 थर देखो भलसे मन रखो नोट बना तापर क्वेश्चन जिन बतेली से क्वेश्चन से तुम जा देखो सब क्वेश्चन आराम से जीवो ओके तुम एटा करस अनुसार तो सब आराम से जीवो क्लियर कि नॉट क्लियर थैंक यू नेक्स्ट हो जी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस laws of chemical combinations listen please सुनो मन कर A सहित B कंबाइन करियो रिएक्शन करिवो तो फॉर्म C and D पहले A और B कौन कह जाए रिएक्टेंट C और D होची प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट ओके पहले देखो जो ए सहित बी रिएक्शन करुची सी डी फॉर्मेशन होची एक्चुअली तार फॉलो सम रोल से किसी रोल को फॉलो करुची जो रिएक्शन टा होची जो रिएक्शन चेंज होची से किसी रिएक्शन कोन लॉ को फॉलो करुची दैट फॉलो सम लॉ व्हाट आर दैट ना गोटे होची वन इज law of conservation of mass 5 laws law of what conservation of mass second is law of constant or definite proportion proportion
थर्ड रही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मल्टीपल फोर्थ रही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिफ्थ रही गे लुसाक्स लॉ 5 laws there follows 5 laws first one is law of conservation of mass second one is law of constant or definite proportion third one is law of multiple proportion fourth one is law of reciprocal proportion of 5 रही गे लुसाक्स law okay 5 laws the law of conservation of mass means what? According to law of conservation of mass, during the chemical reaction, the matter cannot be created or destroyed. Means the total mass remain unchanged. Means the total mass of the reactant must equal to total mass of the product. बुझने को मन कर ये होची टोटल रिएक्टेंट मास होची 10 ग्राम तले प्रोडक्ट के तब दैट आल्सो इक्वल टू 10 ग्राम्स ये भी 10 ग्राम इसे भी 10 ग्राम 10 ग्राम मस्ट इक्वल सो मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड द मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड द टोटल मास रिमेन व्हाट अनचेंज्ड मास के चेंज हो कि मास के चेंज हो नहीं मतलब रिएक्टेंट रो टोटल मास सेतिक हो ये भी एग्जैक्टली सेतिक हो तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आउट भी तुम कहि परबो एपटे जो टाइप रो एटम थिबो जेति एटम थिबो एपटे इक्वली सेति नंबर ऑफ एटम थिबो मुके एपटे सोडियम 3टा एपटे सोडियम भी 2टा हबो सल्फर 1 एपटे सल्फर भी 1 हबो तो टोटल atoms of a same element remain same in both reactant and product. The total number of atoms remains same in the reactant and the product. Atom remains same, mass remains same, so matter cannot be created nor be destroyed. For example, if we take NaCl, react with the silver nitrate to produce AgCl plus sodium nitrate, NaNO3. Then the total mass of the NaCl and AgNO3 must equal to the total mass of AgCl and NaNO3. So mass of this and this equal to mass of this and this. The total mass of the reactant equal to total mass of the product. This mass plus this mass equal to this mass plus this mass. The total mass of the reactant must equal to total mass of the product. This mass plus this mass equal to this mass plus this mass. ओके पहले देखो आम लॉट मन के नॉट इंपोर्टाट आम देखा पड़ो ए बेस क्वेश्चन कौन पचार लॉट जान लो ये लॉ तार या बेस कर क्वेश्चन कौन पचार मुझे ए प्लस बी गिव रेट टू सी प्लस टी यदि ए रस दे बी मास दे सी मास दे डी मास पचार तो जान दिस मास प्लस दिस मास इक्वल टू दिस मास प्लस दिस मास ए मास दे मास दे मास दे ये पचार तेने ये 2टा मास तुम ये मास को सबट्रैक्शन करदबा ताले बेटा ऑटोनी पाई जीवा ये वेरी सिंपल क्वेश्चन माने मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट ओनली यू राइट दिस तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट यू राइट दिस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू व्हाट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट नेक्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ constant or definite proportion or law of multiple एक तुम कोई दूसरा पे how can I identify law of constant or multiple in constant or multiple देखो if we take constant proportion if we take any compound मान करो water is always composed by hydrogen and oxygen hydrogen अच्छी oxygen अच्छी इधर का कार्बन देबो की इथर कार्बन water हो कि that always contain what you take any water that contain what hydrogen and oxygen तो तुम कार्बन मिक्स करबी एटा वाटर को आजिब केउ बुझन कि वाटर होबनी तो वाटर मींस व्हाट दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
In every water molecule, the ratio of hydrogen and oxygen, the mass ratio remains same. That equal to, this mass equal to 2 or 16, 2 is to 16, or equal to 1 is to 8, 1 is to 8. 1 is to 8. Okay? In every water molecule, the mass, the ratio remains same. The ratio of atoms remains same, always equal to 1 is to 8. Always equal to 1 is to 8. That follows law of constant or what? Definite proportion. That means if ratio between the mass of different elements in a compound, the mass of ratio of what? Ratio of mass of car ratio, mass ratio. The ratio of mass of atoms of different elements, if that remains same in all cases, if mass always equal to 1 is to 8 or 2 is to 8, whatever that may be, if the ratio remains same in all cases, that follows law of constant or definite proportion. ଗୋଟେ एग्जांपल दबो तो देखो हाइड्रोजन ଅଛି ऑक्सीजन ଅଛି देखो H केते ଅଛି O केते ଅଛି H केते ଅଛି O केते अछि यू टेक सब रेशियो you take just a ratio. If the ratio remains same in all cases, the ratio टा सब केस रे समान हबो तो blindly कहबो that follows what? Law of constant or definite proportion. Okay, अच्छा तो what is law of multiple? Now you take only two elements, 2 or 3 elements, you take only two elements, if they combine they form different compounds, you take water and H2O2, different types of compounds. If you take water, the ratio of hydrogen oxygen equal to what? 2 is to 16 or equal to 1 is to 8. Here 2 is to 16 or 2 is to 32 or equal to 1 is to 16. 1 is to 16. Just multiple. If ratio remains same, constant of proportion. If ratio is multiple, there follows what? Law of multiple proportion. It is 1 is to 8, it is 1 is to 16. बुझने जो रेशियो टा इक्वल हबो ताले से कांस्टेंट को फॉलो करो. लाव कांस्टेंट के डेफिनेट के फॉलो करिवो. जो मल्टीपल हबो ताले मल्टीपल फॉलो करिवो, मल्टीपल को फॉलो करिवो. त माने जदि एका टाइप रो कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो, सेम टाइप रो कंपाउंड फॉर्मेशन करिवो ताले लॉ ऑफ कांस्टेंट को से फॉलो करिवो. যদি ডিফরেন্ট টাইপর কম্পাউন্ড ফর্মেশন করব, যদি টু এলিমেন্ট কম্বাইন করব, দুইটা এলিমেন্ট কম্বাইন করব, যদি একটা টাইপর কম্পাউন্ড ফর্মেশন হবো তাহলে ল অফ কনস্ট্যান্ট অর ডেফিনিটিভ প্রপোর্শন. যদি দুইটা এলিমেন্ট কম্বাইন করব, যদি ডিফরেন্ট টাইপর কম্পাউন্ড ফর্মেশন হবো তো আমি ব্লাইন্ডলি কইব দ্যাট ফলোজ হোয়াট? ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন. এই টাইপর কোশ্চেন পচারিব. মনে করম কইবি যে কার্বন অক্সিজেন কম্বাইন কলা দ্যাট ফর্ম ওনলি কার্বন ডাইঅক্সাইড. The carbon dioxide combine kala only CO2 formation ala. Mu pacharibi ye ko law ko follow kala. The only CO2 formation ala that follows what? Law of constant or definite proportion. Law of constant or definite proportion. Kintu jodi pachala jodi carbon ro oxygen combine kala that form CO and CO2. CO formation hochi CO2 bi formation hochi. Mu pacharibi ye ko law ko follow korichi. So different type of compound formation ala. So different type of compound formation ala that most follows law of multiple. It is definite, it is multiple. This follows law of definite proportion and this follows law of multiple proportion. This follows law of definite and this follows law of multiple. বুঝছেন কো? এটা দেখুন, এটা only carbon dioxide, এটা carbon oxygen ratio remain same. এটা কিন্তু carbon oxygen ratio কেতে হবে? এটা carbon monoxide রে carbon is to oxygen ratio কেতে হবে? 12 is to 16 or equal to 3 is to 4. The carbon dioxide is C is to okay now 12 is to 32 or equal to 3 is to 8. 3 is to 8. It is 3 is to 4, it is 3 is to what? 8. Just multiple, just 2 times. Just multiple. If that ratio is multiple, that follows law of multiple. Ratio remains same, that follows law of constant. Every question pacharibo. Okay? The law of multiple bujhila, law of definitive bujhila. तापर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एक्चुअली रेसिप्रोकल को बेस करके सेमती क्वेश्चन किछि पचारेनी.
से टाइप क्वेश्चन किसी नहीं एक्चुअली पचारे पाई किंतु एटी कोन ना यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट मनकर अछि हाइड्रोजन अछि सल्फर अछि ऑक्सीजन अछि 3 एलिमेंट्स माने जन को रिलेट करिक रेशियो केतो रिलेट करिक रेशियो केतो हबो और से रेशियोटा निज रेशियो सहित रिलेशन कोन हबो निज रेशियो सहित से सेम ही पारे नले मल्टीपल ही पारे माने जन को रिलेट करिक रेशियो केतो हबो माने हाइड्रोजन को फिक्स करिक देखो रेशियो केतो हबो का भितरे सल्फर ऑक्सीजन भितरे और निज भितरे रेशियो केतो हबो जदि कंपैरिजन करा जिवो त दीज टू रेशियो आइदर सेम और मल्टीपल आइदर सेम हबो नले मल्टीपल हबो फॉर एग्जांपल देखो मनकर हाइड्रोजन से तो सल्फर कमान कला तले H2S हाइड्रोजन ऑक्सीजन कमान कला तले कोन H2O तले H/S के तला 2:32 एटे H/O के तला 2:16 एटा हाइड्रोजन तो फिक्स कर हाइड्रोजन को फिक्स करो हाइड्रोजन 2 मास एटा हाइड्रोजन भी 2 मास हाइड्रोजन 2 एटा हाइड्रोजन 2 फिक्स ही गला तले एटी सल्फर ऑक्सीजन रेशियो केता हबो केता हबो ना 32:16 32:16 और इक्वल टू 2:1 तने हाइड्रोजन को रिलेट करिक रेशियो होची 2:1 और निज भीतर जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो SO2 फॉर्मेशन हो इटी S/O केता हबो Cb 32:32 and that equal to 1:1 तो फर्स्ट केस रे 2:1 मीन जस्ट लाइक 2 सेकंड केस रे जस्ट इक्वल टू 1 if we compare these two ratio this either equal or multiple just at a multiple at a 1 or multiple 1 2 times 2 at a multiple है either से equal भी परे नले multiple ही परे तने जण को फिक्स मास सहित रेशियो केता हबो जणकर फिक्स मास सहित रेशियो केता हबो और निज भीतर रेशियो केता हबो जणकर फिक्स सहित रेशियो केते और निज भीतर रेशियो केता हबो if we compare these two ratio either same or multiple आकु को जे लॉ ऑफ reciprocal proportion you have to take only 3 elements the तीनटा एलिमेंट दबो वन रो फिक्स मास सहित बाकी दिटर फिक्स मास केता हबो बाकी दिटर रेशियो केता हबो त माने द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स लॉट कोन द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स which combines with the fixed mass of another element that ratio either equal or multiple either equal or multiple equal है पर नले multiple है पर in which ratio they combine together जो रेशियो रे से कंबाइन करिवे से जो रेशियो रे कंबाइन करिवे ए रेशियो रे कंबाइन कला एटा ए रेशियो रे कंबाइन करछि ए रेशियोटा जनकर फिक्स मास जो कंबाइन करथबो एटा फिक्स मास दे कंबाइन कला ए रेशियोटा बुझिन कि दिटा रेशियो पे दिटा रेशियो जनकर फिक्स मास रेशियो केते और निज भीतर रेशियो केते निजे कंबाइन कले रेशियो केते हबो जनकर फिक्स मास रेशियो केते और निज भीतर रेशियो केते हबो if we compare these two ratio either same or multiple this follows law of reciprocal proportion किंतु MCQ रे इमिला क्वेश्चन किछ नाही रेसिप्रोकल बेस करी किछ क्वेश्चन नाही केवल क्वेश्चन काहू बेस करी कि ना गोट होची तमरो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी कहजी यदि एका टाइप ओनली वन कंपाउंड प्रोपोर्शन हबो ताले कांस्टेंट डिफरेंट टाइप कंपाउंड प्रोपोर्शन हबो ताले लॉ ऑफ मल्टीपल यदि इन एवरी केसेस रेशियो रिमेन सेम ताले कांस्टेंट if a ratio is multiple that follows law of multiple proportion okay Gay-Lussac law को पहले बेस करी किसी में क्वेश्चन किछ नाही माने जस्ट follows माने मोलर रेशियो माने जस्ट follows that simple ratio in their volumes एटा नॉट इंपोर्टेंट एक्चुअली Gay-Lussac law नॉट इंपोर्टेंट एमसी को किसी क्वेश्चन किछ आसीबो नाही Gay-Lussac बेस करी हला पे एटा तुम भल से पढि दियो एती तमरो नेक्स्ट एटा तमरो एटा actually play तुम नेक्स्ट क्लास इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टॉपिक इज वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली सेट इज तुम मेन बुझिया पाठटा ताकू तुम भल से बुझिगला परे तुम बेसिक कॉन्सेप्ट आहुरी क्लियर हो जिवो बुझन को एरा सब जस्ट तुम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास तुम जो लॉ ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन हला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एटा तुम जस्ट पाठर अछि बिल तो पढाई देली एक्चुअली दिस आर नॉट इंपोर्टेंट इन एग्जामिनेशन व्यू तथापि टाइम क्वेश्चन किछ पचार दोची तो तब पढियो पडियो किछ माने तो नेग्लेक्ट हबनी तो किछ पढिया पडियो ताको डोंट नेग्लेक्ट दैट हला तुमको भल से पढो जदि किछ डाउट हो पचार हला ताको बारंबार थरे तो पढो दुथर पढो तीन थर पढो चार थर पढो ताको बारंबार पढो बारंबार पढो नोट बना फर्स्ट नोट बना
नोट टाक फॉर्म भल से पढ़ है तापर क्वेश्चन जा आग क्वेश्चन मन रखला क्वेश्चन जा तुम डायरेक्ट क्वेश्चन को जीवनी क्वेश्चन केमती डायरेक्ट जीवनी क्वेश्चन तो डायरेक्ट जीव किसी हेनी आग भलसे पढ़ी क्वेश्चन पड़े से हेनी पढ़ मन रखा पड़ो मन रखला क्वेश्चन की जीव आग मन रखा पड़ो मन न रखी क्वेश्चन गले तुम क्वेश्चन टोटल हेनी आग माइंड रखा पड़ो सब पाठटा मुंडे रखा पड़ो माइंड रखिकी क्वेश्चन की जीव सब क्वेश्चन फटाफट हो देख नोट उल्टी क्वेश्चन कर हेनी सी कम नुह तुम पूरा मन रख क्वेश्चन कर क्वेश्चन हम सब क्लीयर कि नॉट क्लीयर थैंक यू।